Hello everyone, I hope you all are fine. So today we are going to learn the remaining portion of chapter 5 from grade 9 and the subject is science. So let's we start. In this video we have to learn nothing else but the content of cell, that which is the things are present inside of the cell. So here in this video we have to learn all the cells, all the organelles one by one, which is shown in this figure. So here are the list of the organelles which is present in the cell. We have to learn one by one all of these. It is a labeled diagram of all the organelles present in cell. We have to learn one by one all the organelles. So let we start with the first one. So we will start with the first organelle of this cell, and that first organelle is endoplasmic reticulum. So what is endoplasmic reticulum? So it is a network of membranes connecting the nucleus and the cell membrane. That endoplasmic reticulum is nothing else but a type of network which is connecting with nucleus and cell membrane. Endoplasmic reticulum is of two types, and that two type is RER and SCR. Here ER is nothing else but an abbreviation of endoplasmic reticulum. Abbreviation means short form. So ER means endoplasmic reticulum. ER is of two type, RER and SCR. RER means rough endoplasmic reticulum and SCR means smooth endoplasmic reticulum. Now on which categories these names are classified? RER means a type of reticulum which have a rough surface. So that's why it is rough endoplasmic reticulum, and SCR means it have a smooth surface, so it is smooth endoplasmic reticulum. Now how it is categorized by rough and smooth? So it is categorized on the base of ribosomes. So on which surface ribosomes is present, the surface is rough. मतलब कि उनकी जो सरफेस है, कोई भी एक स्मूथ सरफेस होगी, नॉर्मल सरफेस, उसके ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सरफेस थोड़ी रफ हो जाएगी. तो ऐसी सरफेस जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो सरफेस क्या हो गई, रफ हो गई. दैट्स व्हाई दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और जो सरफेस जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, दैट मीन्स राइबोसोम इज एब्सेंट, दैट सरफेस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. Besides this, endoplasmic reticulum helps in transport. In transport, it helps to transport intracellular and intercellular transport of substance. मतलब intercellular मतलब सेल के अंदर ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, और इंट्रासेल्यूलर के दो सेल के बीच में चीज़ें ट्रांसफ़र करने में क्या करवाती है, हेल्प करवाती है. और ये इंटरनल सपोर्ट देती है साइटोप्लाज्म को. तो ये उनके दो वर्क हुए, ट्रांसपोर्ट का और सपोर्ट का. हियर इज द इमेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. द डार्क पिंक इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइट पिंक इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. हियर यू कैन सी the dark portion have a dotted structure on that. So that dotted structure is nothing else but ribosome, and because of ribosomes attach on the surface of rough endoplasmic reticulum, the surface is quite rough, so that's why it is called rough endoplasmic reticulum. But in this portion there is no rough surface because it looks like transparent, it looks like smooth, so this one is a smooth endoplasmic reticulum. Now here are the two type, RER and SCR. On RER ribosomes are present and on SCR ribosomes are absent. RER is this portion and SCR is this portion. Now what is the work of RER and SCR? So rough endoplasmic reticulum synthesize protein, whereas smooth endoplasmic reticulum synthesized lipid. मतलब कि rough endoplasmic reticulum प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाता है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिस्टीन से बना हुआ होता है, मतलब उनके अंदर ऐसे कर्व्स होते हैं, जैसे वो कपड़े में घड़ियाँ कैसे होती है, सिलवटें होती है, ऐसे सिलवटों से बना हुआ आता है पूरा. सिलवटों को यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म में सिस्टर्न बोला जाता है. और
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स के जैसे. सो दिस आर अ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स एंड दिस आर अ सिस्टर्न्स. डन. सो हियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंप्लीट. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन सेकंड ऑर्गन. So our second organelle is ribosome. So ribosome can be found floating within the cytoplasm or attached to a endoplasmic reticulum. It's not like that ribosomes is only attached on endoplasmic reticulum. You can see ribosomes anywhere in a cytoplasm. ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होंगे, वो आपको पूरे सेल में कहीं पे भी साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए दिख जाएंगे. Proteins are an essential part of all cells. Both eukaryote and prokaryote require protein to function and carry out daily activity. कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एट द सेम वे आपके सेल के अंदर भी प्रोटीन बहुत ही रिक्वायरमेंट है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो. उन दोनों को हर एक डेली एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है. सो दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम. So this reason ribosomes are extremely important for the survival of living things. कि जैसे बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर है, बट प्रोटीन बनाता कौन है आपकी बॉडी के अंदर? राइबोसोम्स बनाता है. तो आपकी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स की इम्पोर्टेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही ज्यादा है. सो हियर राइबोसोम इज ऑल्सो कंप्लीट. सो द थर्ड ऑर्गेनल इज गोल्गी अपार्टस. This is an image of Golgi apparatus. Now after seeing this image we'll shift on theory portion. So the Golgi apparatus is an organelle found in most eukaryotic cell. Mostly Golgi apparatus seen in eukaryotic cell. In prokaryotes it's not present क्योंकि prokaryote के अंदर well developed cell organelles नहीं होती. Now Golgi apparatus you can also call Golgi body and Golgi complex. कि ये सारे Golgi apparatus के दूसरे नाम है. Now the name of Golgi apparatus or else the main name Golgi is given by a physician. The name is Camillo Golgi. He discovered Golgi body in 1897. So on his name this organelle is known as Golgi body or else you can say Golgi complex or Golgi apparatus by a name of physician Camillo Golgi. The Golgi apparatus process and package macromolecules such as protein and lipids. कि Golgi apparatus काम क्या करती है? तो Golgi apparatus पैकेजिंग एंड डिस्पैच का काम करती है. कि आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन्स एंड लिपिड बना है उस प्रोटीन एंड लिपिड्स को दूसरी ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने का काम, आपकी बॉडी के अलग अलग पोर्शन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्गी अपार्टस करते हैं. बट उन चीज़ों को अगर ऐसे ही ओपनली लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कहीं पे भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है. इसीलिए सबसे पहले वो क्या करती है? उसको पैकेज करती है. सो पैकेजिंग एंड डिस्पैच, प्रोटीन एंड लिपिड को पैकेज करके फिर उसको डिस्पैच करने का काम, मतलब किसी और जगह पहुंचाने का काम करती है. अब ये पैकेजिंग किस तरीके से होगा? यहाँ पे आपको जितने भी सीज एंड टर्न्स दिख रहे हैं, मेरे रेड एरो पे ध्यान दीजिएगा. तो ये सीज एंड टर्न में से क्या होगा? ये ऐसे इस जैसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट क्या होते जाएंगे? अलग होते जाएंगे. फिर उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन स्टोर होके फिर वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी लाइक दिस. फिर ये बंद हुआ हो पोर्शन जिस ऑर्गेनल को लिपिड प्रोटीन की जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगा. सो दिस आर द वर्क ऑफ गोल्गी apparatus and the main work is packaging and dispatch. So after learning Golgi apparatus, your next organelle is lysosome. So what is lysosome? Here is the image of lysosome. Now we will learn what is lysosome and what is the function of that. So lysosome is known as the suicidal bag of cell. We will learn that why it is known as suicidal bag of cell. But before that you have to learn that lysosome is only present in animal cells. It is not present in plant cell. Now why the name suicidal bag is given to lysosome? तो इसका एक अलग फंक्शन है कि इसको सुसाइडल बैग इसीलिए बोला गया है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई डैमेज सेल हो जाता है या तो आपकी बॉडी में कोई ऐसी डैमेज चीज़ें एंटर करती है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, तो ऐसे टाइम पे लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम के पास इतनी डिटेक्शन स्मेल होती है कि जब भी उसको पता चले कि हाँ भाई बॉडी में ऐसी अनवांटेड चीज़ें आई है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है? तुरंत ही
उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है और वो खुद क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, मतलब वहां पे जाके वो फट जाता है। अब फटने की वजह से क्या होगा, आपको लाइसोसोम्स के अंदर ये येलो डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये येलो डॉट्स क्या है, एंजाइम्स है, और कोई सिंपल एंजाइम्स नहीं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है कि भाई किसी भी चीज को वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो अब ये लाइसोसोम क्या करेगी कि जो भी अनवांटेड चीज है आपके सेल के पास आई है, वहां पे जाके ये लाइसोसोम क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो फूटने की वजह से क्या होगा कि ये अंदर के जितने भी एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, वो जो आपका अनवांटेड कंपाउंड है उसके ऊपर पड़ेंगे, और वो ये सारे एंजाइम्स की वजह से वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी को खतरा नहीं होगा। दैट्स वाई लाइसोसोम इज नोन एज क्लीनर एंड स्वीपर ऑफ सेल, की आपकी बॉडी में से अनवांटेड कचरा, जो अनहेल्दी चीजें है, जो डैमेज चीजें है, उसको क्लीन करने का काम करता है, इसीलिए इसको स्वीपर ऑफ सेल भी बोला जाता है। यहाँ पे एक दूसरी इमेज भी दी है उसके स्ट्रक्चर के साथ, ये जो बाहर की है वो फोस्फोलिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन है और उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जैसे कोई एक कंपाउंड है, उसको क्या करेगा, बहुत सारे राइबोसोम्स आके उसको चारों ओर से घेर लेंगे, क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम्स ऑटोमेटिक बर्स्ट हो जाएंगे, तो अंदर के जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएंगे, डाइजेस्ट होके। सो आफ्टर कंप्लीटिंग लाइसोसोम वी विल मूव ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, की ये जो मेम्ब्रेन है वो रोड शेप की मेम्ब्रेन है। हियर यू कैन से इट वन इज अ रोड लाइक शेप, कि रोड लाइक शेप की जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, रोड लाइक शेप जो ऑर्गेनल होती है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज नथिंग एल्स बट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी फॉर योर बॉडी, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस बोला गया है। नाउ द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज इन अ फॉर्म ऑफ ATP. Here ATP is also abbreviation and the full form of ATP is adenosine triphosphate, ATP. So ATP is the abbreviation of adenosine triphosphate which is produced by mitochondria for the energy of body. Now the main thing about the mitochondria is mitochondria have its own DNA. Here is a DNA which mitochondria have. So mitochondria can regenerate by its own, and this mitochondrial DNA is a parental DNA, कि ये जो DNA parental DNA मतलब कि ये आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स इन द सेंस आपकी मदर के थ्रू मिलता है, कि आपकी मम्मा की बॉडी के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो सेम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपकी बॉडी के अंदर शिफ्ट होंगे, वो डीएनए फिर आपकी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर शिफ्ट होंगे। सो ऑफस्प्रिंग गेट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम द मदर, के आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपकी बॉडी के अंदर वो सेम टू सेम कॉपी होगा आपकी मम्मा के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो आपको बाय बर्थ ही मिलता है, आपको हेरिडिटरी में मिलता है वो। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स. Plastids are the organelle which is present only in plant cell, and they are mainly of two types, and the type is leucoplast and chromoplast. Now what is the word leucoplast and chromoplast means? Leuco means white in color and chromo means colorful. So leucoplast means colorless plastid and chromoplast means the plastid which have various colors. So there are mainly two types of plastids. And what is the work of plastids? Plastids gives colors to plant, cause human body does not have green color body, but plants have a various colors. So this color is given by plastids. So it's depending on if it's a colorless, then its leucoplast is present, and if the plant and if some have a different color, then chromoplast is present. और अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्लांट्स की, जो हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो ये ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से. सो प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन इन कलर इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. कि जैसे ऐसे प्लास्टिड्स जिनका ग्रीन कलर होता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. हियर इज द इमेज ऑफ
क्लोरोप्लास्ट की ये जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है वो क्लोरोप्लास्ट की ये जो अंदर वाली है वो इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली है आउटर मेम्ब्रेन। और फिर ये उसका स्ट्रक्चर है कि ये जो एक जो पोर्शन है, जो एक आपको कॉइन जैसा दिख रहा है, उस एक को बोला जाता है ग्रेनम। फिर ये जो पूरी जो स्टेक है, स्टेक को बोला जाता है ल्यूमन। और ये जो इसके जो बंच है दैट इज थाइलाकॉइड्स। और ये जो सेंटर जो ग्रे कलर का पोर्शन दिख रहा है दैट वन इज स्ट्रोमा। सो इट इज अ इमेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Now, our next organelle is vacuole. So vacuole is what? Vacuole is nothing else but a storage tank for a cell. Now, it can be stored solid parts also and it can be stored liquid part also. Now, vacuole is mostly present in a plant cell. In plant cell, they are present in a n number and the size is too large. But if you are comparing with animal cell, it is mostly absent in animal cell. Or if it is present, they are in very small size. Vacuole have no typical size or no typical shape. They simply vary depend on what the individual cell needs. कि वैक्यूल का कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं होती या तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का सेल है। जिस टाइप का सेल होगा उसके अकॉर्डिंग वैक्यूल अपने आप अपनी साइज एंड शेप क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा। अब आपको एक ये कंफ्यूजन होगी कि पता कैसे चलता है कि भाई प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है और एनिमल सेल में नहीं है। तो एक सिंपल थिंग है कि वैक्यूल क्या करती है, एक खाली जगह है कि जो क्या करेगी, फूड और लिक्विड स्टोर करेगी। तो वैक्यूल की वजह से क्या हो जाता है, सेल की साइज बहुत ही बढ़ जाती है। तो प्लांट सेल बहुत ही बड़े बड़े होते हैं एनिमल सेल की कंपैरिजन में, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है, इसीलिए प्लांट सेल भी बड़े होते हैं। बट अगर आप एनिमल्स की बात कर लो तो ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही आते हैं। तो आप खुद को ही प्लांट के साथ कंपेयर करो कि आपकी बॉडी प्लांट जितनी बड़ी है नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स है और उन छोटे छोटे सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होती। अगर होगी भी तो बहुत ही छोटी होगी। सो दैट्स व्हाई एनिमल सेल डज नॉट हैव वैक्यूल्स एंड प्लांट सेल हैव इट। दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल डिफरेंट वेसिकल्स। और अब ये वैक्यूल्स फॉर्म कैसे होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा वेसिकल्स होंगी वो सारी एक्स्ट्रा वेसिकल्स बाइंड होके एक पूरी वैक्यूल बना देते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल मतलब कुछ नहीं, एक खाली जगह। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह होगी दैट ब्लैंक पोर्शन इज नोन एज वैक्यूल। So now the next organelle and the last organelle is centrioles. So here is an image of centrioles. This is a microtubules and from this microtubules centrioles are formed. Centriole is only present in animal cell. In plant cell it is absent. And in animal cell only 2 centrioles are present. And the 2 centriole is enough for it. So now this centrioles when come in picture. So this centrioles come in picture when it is a time of cell division. मतलब जब सेल को डिवाइड होना होगा तभी centrioles काम में आएगी, तब तक उसका कुछ काम नहीं है। A centriole is a set of microtubules arranged in a specific way. तो अब ये centrioles है क्या, तो ये जो centrioles है वो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक वे के अंदर क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक होती है कि इनके अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 9 का ग्रुप होता है। 9 का ग्रुप इन द सेंस आपको ये जो मेरा रेड एरो दिख रहा है ना, दैट वन इज अ 9 स्टेक्स इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Here is in a 9 group. So this one is the first microtubule and this one is the second microtubule. ये हमेशा 9 की पैर में होगी, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। और जब सेल डिवीजन की जरूरत होगी तो ये क्या हो जाएगी, सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपकी सेल की सारी ऑर्गेनल्स खत्म होती है और उसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी खत्म होता है। So after completing chapter 5 and a 2 video which is in part 1 and part 2, I'll give you a small exercise. Just you have to see this image
and you can see various numbers I labeled here. So you just have to note down these all numbers and note down the name, that one is which, second is what organ, which organelle, third is which, fourth is which. तो ये सारे ऑर्गेनल्स के नाम आपको आपके बुक के अंदर लिखने हैं, 1 करके ये जो ऑर्गेनल है उसका नाम, 2 करके उसका नाम, 3 करके उसका नाम. मुझे सिर्फ इनकी लेबलिंग चाहिए. So here we are done with our chapter number 5. If you have any doubt, then ask me. Thank you everyone.